very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today's topic is derivatives of vectors. So before studying the derivatives of vectors, we will study some definition. So first definition is of scalar point function. So if for each point P of a region R, there corresponds a scalar denoted by f of P, then this f is called a scalar point function for the region R. So if we have any point P in region R, then the scalar denoted by f of P. Okay, so this is the scalar. Then this scalar denoted by f of P, then this f is called the scalar point function for that point in the region R. Similarly, for example, the temperature f of P at any point P of a fluid occupying a certain region is an example of scalar point function in the region R. Similarly, next definition is the vector point function. So if for each point P of a region R, there corresponds a vector denoted by f vector P. Here it was scalar. So now here it is the vector. So means it possesses the direction also. So f vector P, and then this vector f is called the vector point function for the region R. So example of this function is that if the velocity of a particle at a point P at any given time t be f vector P, then f vector is the vector point function for the region occupied by the particle at time t. So these are some definitions of scalar point function and vector point function. Now we will study the derivatives of vectors. So derivative of a vector function. So if we say that if this limit exists, that is limit delta t approaches to 0, f vector into t plus delta t minus f vector t divided by delta t. If this limit exists, we say that this is the derivative of a vector function r with respect to the scalar t, and it is denoted by dr vector divided by dt. So we can say the derivative of a function is given by or defined by this limit. So dr by dt, dr vector by dt, this is equal to limit delta t approaches to 0, because r is function of f of t. So instead of that I have used this term because r is I will write here. So we can say that we have basically taken r vector is equal to f of t, f vector t, the be a vector function of scalar variable t. So from here we get this term. So similarly r plus delta r, that is r vector plus delta r minus r vector whole divided by delta t. So this is equal to limit delta t approaches to 0, f vector, then instead of this term we will write t plus delta t minus f vector t whole divided by delta t. So in short we can say if this limit exists, well, then it is called the derivative of the vector function r with respect to that scalar t. So for these there are some notes. So first note is that if dr by dt means derivative of the vector function exists, then r vector is said to be differentiable with respect to t. Similarly, if delta r by delta t is a vector quantity, then the total derivative means dr vector by dt is also a vector quantity. So if we have to find the second order derivative of this function, then this means this is the d by dt of dr vector by dt. Similarly, for third order we will do d by dt of, that is differentiation of the second order derivative, and so on. So these are some results. First result is that we can also solve these results, but I have only written the results. You can also prove this. So d by dt of a vector plus b vector, this is equal to d into d by dt of a vector plus d by dt of b vector. Similarly, second is that differentiation of these two vectors, that is a vector dot b vector, this is equal to a vector dot
derivative of this b vector with respect to t plus derivative of a vector with respect to t into means into dot product of b vector. Similarly, this is the other result, that d by dt of a vector cross b vector, this is equal to a vector cross d by derivative of b vector, similarly plus derivative of a vector cross b vector. Next is derivative or d by dt of phi of a vector, where phi is basically a differentiable scalar function of same variable t. So this is equal to phi times d by dt of a vector plus d phi by dt of a vector. D by dt of the scalar triple product, this is equal to d by dt of a vector comma b vector and c vector. Similarly, then it will be the derivative of this b vector, and in plus in other scalar triple product we have the derivative of c vector. Similarly, the sixth result is that d by dt of a vector cross b vector cross c vector, this is equal to derivative of a vector cross b vector cross c vector plus a vector into derivative of b vector by with respect to t cross c vector plus a vector cross b vector cross derivative of c vector. So these a, b, c are differentiable vector functions, and phi is a differentiable scalar function of the same variable t. Next is the derivative of a vector function in terms of its component. So if r is equal to xi plus yj plus zk, so then we get the derivative of this function as in terms of its component as dx by dt into I plus dy by dt into j plus dy by dt into unit vector k. Next is the constant vector. So we can say a vector is said to be constant if its both magnitude and direction are fixed and do not change. Means we can say the vector is constant if its magnitude and direction are fixed and do not change. So now we will solve first article, that is show that the derivative of a constant vector is a zero vector. सो इस केस में हम क्या करेंगे, अब हमें ये प्रूव करना है कि जो कांस्टेंट वेक्टर है उसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, जीरो वेक्टर के इक्वल है. तो ये बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना. सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट हम लेके चलेंगे आर को एक वेक्टर, लेट आर वेक्टर बी ए कांस्टेंट वेक्टर. ये हम आर को ले रहे हैं कांस्टेंट वेक्टर, बी अ कांस्टेंट वेक्टर, ये हमारे पास आ गया कांस्टेंट वेक्टर. सो दैट इज, अगर आर वेक्टर को हम बोल रहे हैं कि ये क्या है हमारा कांस्टेंट वेक्टर, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर. ओके, सो वेयर सी इज द कांस्टेंट वेक्टर. सो ये जो सी है ये क्या है, ये कांस्टेंट वेक्टर है. इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, इज ए कांस्टेंट वेक्टर. सो हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख लेते हैं. सो यहाँ से हम अगर इस आर वेक्टर में इंक्रीमेंट भी ऐड करें, दैट इज डेल्टा आर, this is also equal to c vector. okay, so name it as equation number second. so हम अब क्या करेंगे, subtract करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इन दोनों इक्वेशन को. so subtracting first from सेकेंड वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से r से r सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो खाली हमारे पास बचेगा डेल r वेक्टर. दिस इज इक्वल टू c, और c भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा ज़ीरो वेक्टर. सो जब हमारे पास ये टर्म आ गई, अब हमने इसको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है. सो हम इसका एक तरीके से विथ रेस्पेक्ट टू टी दैट वेरिएबल, सो ये आ जाएगा हमारे पास डेल आर बाई, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल आर बाई डेल टी, दिस इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीपल भी करेंगे स्टिल वो यही सेम क्वांटिटी रहेगी. सो दिस मीन्स लिमिट डेल्टा एज डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो, जैसे जैसे डेल्टा टी क्या करेगा, अप्रोच करेगा ज़ीरो को, सो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो वेक्टर. सो दिस मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, अब ये कौन सी टर्म बन गई, ये हमारे पास टोटल डेरिवेटिव बन गई. सो आई कैन राइट हियर डी आर बाई डी टी दिस इज इक्वल टू जीरो वेक्टर. सो हेंस द डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्स्टेंट फंक्शन इज अ जीरो वेक्टर बिकॉज आर इज इक्वल टू सी वेक्टर एंड सी दिस इज द कॉन्स्टेंट वेक्टर. नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर वेक्टर एफ वेक्टर टी टू बी कांस्टेंट इज दैट डी बाई डी टी ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर. सो इसमें सबसे पहले हम इसकी कंडीशन इज नेसेसरी निकालेंगे, फिर कंडीशन इज सफिशिएंट के लिए निकालेंगे. सो कंडीशन इज नेसेसरी, और वी कैन से नेसेसरी कंडीशन क्या थी हमारी, कंडीशन इज नेसेसरी के लिए निकाल लेते हैं पहले.
सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट जो हमारे पास ये एफ वेक्टर टी है, एज्यूम दैट एफ वेक्टर टी इज ए कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन, इज ए कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन। हम लेके चल रहे हैं कि ये जो एफ डैश टी है ये क्या है, कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन। अब जब हमारे पास ये कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन आ गया तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं दैट एफ वेक्टर इंटू टी प्लस डेल्टा टी, ये किसके इक्वल हम लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इंटू टी। ओके, सो यहाँ से हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, एफ वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ वेक्टर टी, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। जैसे हमने प्रीवियस आर्टिकल में सॉल्व किया था वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। सो ये हमारे पास आ गया। सो सेम इसको हम डिवाइड करेंगे डेल्टा टी से। सो आई कैन राइट हियर एफ ऑफ एफ वेक्टर इंटू टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ वेक्टर इंटू टी होल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। सो दिस इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस में इम्प्लाइज अगर हम इस पर लिमिट भी अप्लाई करेंगे जैसे जैसे डेल्टा टी अप्रोच करेगा ज़ीरो को, सो ये टर्म भी किसके इक्वल हो जाएगी, एफ वेक्टर इंटू टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ वेक्टर टी, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर एंड होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी। सो ये टर्म क्या हमारे पास है, बेसिकली ये तो डेरिवेटिव हो गया उस फंक्शन का। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट डी एफ वेक्टर बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। सो मीन्स कंडीशन इज सफिशेंट, जो नेसेसरी है वो हमारी प्रूव हो गई। अब हम कंडीशन इज सफिशेंट के लिए लेके चलेंगे। सफिशेंट में हम ये टर्म लेके चलेंगे और ये रिवर्स निकालेंगे। मीन्स हम ये बोलेंगे कि जो एफ ऑफ टी है वो कॉन्स्टेंट फंक्शन है। सो आई विल राइट हियर कंडीशन इज सफिशेंट, कंडीशन इज सफिशेंट। अब सफिशेंट के लिए देखो अब हम कैसे लिखेंगे, हम इसका रिवर्स लेके चलेंगे। सो हम लिखेंगे कि एज्यूम दैट, हम एज्यूम क्या कर रहे हैं, एज्यूम दैट जो डी एफ वेक्टर बाई डी टी है वो किसके इक्वल है, ज़ीरो वेक्टर के इक्वल है। और प्रूव क्या करेंगे कि जो एफ वेक्टर टी है ये क्या है, कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन। सो अब हम यहाँ पे पहले एफ वेक्टर टी ले लेंगे। सो एफ वेक्टर टी जो होगा वो किस इसके कंपोनेंट्स में लेंगे, वो कैसे होगा, एफ वन इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस एफ टू इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस एफ थ्री इंटू यूनिट वेक्टर के। सो ये हमारे पास इसके यूनिट वेक्टर्स आ गए। सो इनका डेरिवेटिव भी अब देख लेते हैं। सो वो किसके इक्वल आ जाएगा, सो देयरफॉर आई विल राइट, so therefore I can write derivative of this function that is f vector gives। अब जब मैं इस इक्वेशन की डेरिवेटिव लेती हूँ, मान के चलिए इसको इक्वेशन नंबर हम 1 रख लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लूँगी वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमें पता है कंपोनेंट्स में हम उसको कैसे लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ वन इंटू यूनिट वेक्टर आई डिवाइडेड बाई डी टी प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ टू डिवाइडेड बाई डी टी इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ थ्री डिवाइडेड बाई डी टी इंटू यूनिट वेक्टर के। सो ये हमारे पास आ गया। सो अब ये टर्म, मगर ये जो डी एफ बाई डी टी किसके इक्वल था, ये तो ज़ीरो वेक्टर के इक्वल था, तो हम डायरेक्टली क्या लिख लेंगे, दिस होल टर्म इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। सो आई विल राइट हियर, सो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास टर्म थी डेल एफ वेक्टर बाई डी टी, वो किसके इक्वल था, बेसिकली दैट वाज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। सो यहाँ पे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, नेम इट एज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो यहाँ से आएगा ज़ीरो इज इक्वल टू डेल एफ वन बाई डी एफ वन बाई डी टी इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस डी एफ टू बाई डी टी इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस डी, that is derivative of f3 with respect to t into unit vector k। so यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, derivative of f1 by dt, this is equal to 0 and similarly derivative of f2 with respect to dt with respect to t is equal to 0, derivative of f3 with respect to t, this is also equal to 0। so यहाँ से क्या आ जाएगा, जो f1 है f2 है और f3 है, ये है क्या, ये क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे किसके, t से। सो आर इंडिपेंडेंट ऑफ टी, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है किसका, इस वेरिएबल टी के। सो दिस इम्प्लाइज दैट दिस फंक्शन एफ, दिस फंक्शन दैट इज एफ वेक्टर टी इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इज अ कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन, कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन, hence the result।
Next article is the necessary and sufficient condition for the vector function. This is to have constant magnitude is f vector dot derivative of this vector is equal to 0. That is derivative of f vector with respect to t is equal to 0. सो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सेम उसी प्रोसीजर से करेंगे. पहले कंडीशन इज नेसेसरी लेंगे, फिर सफिशिएंट लेंगे. सो आई विल राइट कंडीशन इज नेसेसरी. कंडीशन इज नेसेसरी. सो नेसेसरी कंडीशन में हमने क्या लेके चलना है कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऐसे, कंडीशन इज नेसेसरी. हम लिखेंगे एज्यूम दैट, हम एज्यूम करेंगे जो ये एफ वेक्टर है, एज्यूम दैट एफ वेक्टर हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, एफ वेक्टर हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. सो ये हम लेके चल रहे हैं कि इस वेक्टर के क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, और हम इसका प्रूव करेंगे कि जो ये क्वांटिटी है वो इक्वल टू 0 आएगी. अगर ये कांस्टेंट इसका मैग्नीट्यूड है तो दिस मीन जो उसका मॉड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो अगर मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर क्या है, कांस्टेंट है, तो दिस मीन्स यहाँ से क्या होगा, एफ वेक्टर, देयरफॉर नाउ ऐसे लिखते हैं, नाउ एफ वेक्टर इंटू एफ वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड ऑफ एफ वेक्टर का स्क्वायर. सो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल आएगा. सो इसका अगर अब हमें डेरिवेटिव लेना है इन दो प्रोडक्ट्स का, ठीक है, इन दो फंक्शन का, तो अगर हम इसका लेंगे डी बाई डी आर विथ रेस्पेक्ट टू दिस एफ वेक्टर इंटू एफ वेक्टर, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 0 के इक्वल आएगा. हमें पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ जो दो वेक्टर्स का, यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव लेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के लिए आएगा. सो यहाँ से हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, एफ वेक्टर इनटू ये यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो मैंने अभी आपको रिजल्ट्स में लिखवाया था. सो डायरेक्टली ये बन जाएगा डी बाई डी टी, सॉरी एफ वेक्टर इंटू डी बाई डी टी ऑफ एफ वेक्टर प्लस डी बाई डी टी ऑफ एफ वेक्टर डॉट एफ वेक्टर. सो दिस टर्म इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एफ वेक्टर इंटू 2 टाइम्स एफ वेक्टर और इंटू डी एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू 0. सो विच इम्प्लाइज 2, तो 0 के इक्वल नहीं होगा. सो क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इंटू डेल एफ वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू डी टी, दिस इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई. अब हमने निकालना है कंडीशन इज सफिशिएंट. अब कंडीशन इज सफिशिएंट में हम क्या लेके चलेंगे, ये टर्म लेंगे और शो करेंगे एफ हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. सो कंडीशन इज sufficient. So I will write assume लेके चलेंगे, assume that f vector into d by dt of this f vector this is equal to 0. और प्रूव क्या करना है कि ये क्या आएगा, जो f वेक्टर है वो क्या है, कांस्टेंट है. सो हम लिखेंगे assume that this is equal to 0. So this implies 2 times f vector into df vector by dt, this is also equal to 0. So वो क्या इम्प्लाई करेगा, f vector into, यही स्टेप रिवर्स में ले जाने हैं और कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है, dt प्लस डी एफ वेक्टर बाई डी टी इंटू एफ वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एफ इंटू एफ वेक्टर जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 के आएगा. सो विच इम्प्लाइज दैट एफ वेक्टर इंटू एफ वेक्टर किसके इक्वल आया, कांस्टेंट आ गया, दिस इज ए कांस्टेंट टर्म. सो यहाँ से हम ये कांस्टेंट आ गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एफ वेक्टर का स्क्वायर जो होगा वो भी किसके इक्वल हो गया, कांस्टेंट आ गया. अगर इसका स्क्वायर कांस्टेंट हो तो मीन्स मॉड एफ भी किसके इक्वल आएगा, जो वेक्टर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल आएगा. हेंस द रिजल्ट. So next article is the necessary and sufficient condition for the vector function this to have constant direction is f vector cross del f vector by dt, this is equal to 0 vector. So same ये जैसे हमने भी मैग्नीट्यूड के लिए किया वैसे ही करेंगे, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस, वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा. सो हम इसको कैसे लिखेंगे, लेट, हम क्या लेके चलेंगे, लेट एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ इंटू यूनिट वेक्टर कैपिटल एफ, वेयर आई विल राइट दिस capital F is the unit vector, is a unit vector in the direction of F, in the direction
ऑफ एफ वेक्टर। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, u बाई वी का फॉर्मूला लग जाएगा। सो आई विल राइट डी एफ बाई डी टी, डी एफ वैक्टर बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू एफ इंटू डी एफ यूनिट वैक्टर डिवाइडेड बाई डी टी, देन प्लस ये आ जाएगा हमारे पास डी एफ डिवाइडेड बाई डी टी इंटू यूनिट वैक्टर एफ। सो अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को किसके साथ हम मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल किसके साथ लेंगे, एफ वेक्टर के साथ। तो हम लिखेंगे एफ वेक्टर इंटू डी एफ बाई डी टी, निकालेंगे डी एफ वेक्टर बाई डी टी। सो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इंटू, मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, एफ इंटू यूनिट वेक्टर एफ प्लस इन क्रॉस, यह आ जाएगा हमारे पास एफ इंटू डी एफ इंटू यूनिट वेक्टर दिस इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी टी प्लस डी एफ बाई डी टी इंटू यूनिट वेक्टर एफ। सो ये हमारे पास टर्म आ गई। सो जब हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, सो ध्यान रखना है कि जब हमने इस f से इसको मल्टीपल किया तो मगर f की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है। f की वैल्यू थी f इंटू यूनिट वैक्टर कैपिटल F, सो मैंने डायरेक्टली वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इधर लिख दिया। अब हम इसको अंतर क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे इसको, ये हमारे पास हो जाएगा एफ स्क्वायर इंटू यूनिट वैक्टर f क्रॉस डी एफ यूनिट वैक्टर मतलब डी बाई डी टी ऑफ यूनिट वैक्टर f, देन प्लस ये हो जाएगा f टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू t, देन एफ यूनिट वेक्टर एफ क्रॉस यूनिट वेक्टर एफ। सो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी एफ स्क्वायर यूनिट वेक्टर एफ और साथ में आएगा डेल डी बाई डेरिवेटिव ऑफ यूनिट वेक्टर एफ डिवाइडेड बाई विथ रेस्पेक्ट टू टी, प्लस ये जो आएगा ये किसके इक्वल होगा, जीरो, क्योंकि हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट जो दो इन सेम वेक्टर्स का किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास टर्म बन गई एफ वेक्टर क्रॉस डी डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ वेक्टर, दिस इज इक्वल टू एफ स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर एफ क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ दिस यूनिट वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टी। सो ये हमारे पास टर्म बन गई, ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। अब हमने क्या करना है, कंडीशन इज नेसेसरी लेके चलना है। ये हमारे पास जो ये हमारे पास अभी ये टर्म आ गई, अब हम इसकी पहले कंडीशन इज नेसेसरी निकालेंगे, फिर कंडीशन इज सफिशिएंट निकालेंगे। सो आई विल राइट कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन इज नेसेसरी। सो उस केस में हम क्या एज्यूम लेके चलेंगे, हम लिखेंगे एज्यूम दैट ये जो फंक्शन एफ ऑफ टी था ये हैज़, इसकी क्या है, कांस्टेंट डायरेक्शन। एज्यूम दैट दैट एफ वेक्टर टी हैज़ ए कांस्टेंट डायरेक्शन, हैज़ ए कांस्टेंट डायरेक्शन। तो हम लेके चल रहे हैं ये टर्म, सो कांस्टेंट डायरेक्शन। सो उसके लिए अगर कांस्टेंट डायरेक्शन है मींस जो कैपिटल वेक्टर एफ है वो क्या है, इज कांस्टेंट हो गया। उसका मतलब हो गया कि जो कैपिटल वेक्टर एफ है दिस इज ए कांस्टेंट वेक्टर। सो उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा, जीरो वेक्टर के लिए। हमें पता है कि जो डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट वेक्टर का वो इक्वल टू जीरो वेक्टर होता है, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं दिस इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। सो फ्रॉम फर्स्ट जो हमारे पास ये इक्वेशन थी दैट वाज प्रीवियस इक्वेशन, नेम इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो इस इक्वेशन से अब हम देखेंगे, सो फ्रॉम फर्स्ट, सो आई विल राइट हियर फ्रॉम फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, मैं इधर लिख देती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन थी बेसिकली एफ वेक्टर क्रॉस डी एफ डी ये डेरिवेटिव ऑफ दिस वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टी, दिस इज इक्वल टू एफ स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर एफ क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ दिस यूनिट वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टी। सो ये टर्म था, तो यहाँ पे अगर डी एफ बाई डी टी ज़ीरो हो गया तो ये वाली क्वांटिटी जो है आर एच एस वाली ज़ीरो हो गई। सो आई विल डायरेक्टली राइट दैट एफ वेक्टर क्रॉस डी एफ डेरिवेटिव ऑफ दिस वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टी, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। सो यहाँ से हमारे पास नेसेसरी कंडीशन हो गई। अब हम सफिशेंट निकालेंगे, तो कंडीशन इज सफिशेंट, कंडीशन इज सफिशेंट। तो सफिशेंट के लिए देखें हम क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे ये टर्म, हम लिखेंगे एज्यूम दैट एफ वेक्टर क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ दिस वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, और शो क्या करेंगे, उसकी कांस्टेंट डायरेक्शन है। सो बस सेम है, ये चीज़ रिवर्स ही हो जाएगी। सो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ से क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट एफ टू इंटू यूनिट वेक्टर कैपिटल F इंटू दिस टर्म
बाई दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर. सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एफ वेक्टर है, एफ यूनिट वेक्टर क्रॉस डी एफ बाई डी टी of f unit vector f, this is equal to 0 vector. So name it as equation number 2. So यहाँ से हमारे पास आ गया. So since हमारे पास क्या है, जो ये यूनिट वेक्टर f है, ये क्या है, is of constant magnitude. ये क्या था, is of constant magnitude. सो उसका मतलब हो गया कि जो f वेक्टर है, यूनिट वेक्टर f, और डॉट प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू दिस टर्म इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन नंबर, इसको थर्ड रखते हैं. सो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से हमारे पास क्या आ गया, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी गेट, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वी गेट दैट derivative of this vector, unit vector with respect to t, is a 0 vector. So therefore f vector is f unit vector f is ये जो unit vector f है, this is a constant vector. ये हमारे पास क्या आएगा, constant vector both in magnitude and direction. Vector both in magnitude and direction. ये magnitude में भी और किस में, direction में भी, and direction. So यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, this implies that f vector is has a constant direction. F vector has a constant direction. So hence solved. यहाँ से हमारे पास ये आर्टिकल भी प्रूव हो गया. So has constant direction. So next we will solve some examples. So first example is, if r vector is equal to t cube I into unit vector I plus 2t cube minus 1 by 5t square into unit vector j, then we have to show that r vector in cross dr by d by dt of this r vector is equal to k vector. सो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हमने क्या लिखना है, सबसे पहले आर वेक्टर कितना है हमारे पास, आर वेक्टर था हमारे पास टी क्यूब इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस 2t क्यूब माइनस 1 बाई 5t स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर जे. सो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. सो डी आर बाई डी टी वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से हो गया 3t स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस ये हो जाएगा 6t, देन 6t स्क्वायर माइनस यहाँ से ऊपर चला माइनस आ जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा. सो ये आ जाएगा 2/5, इट विल बिकम t क्यूब, और ये हो जाएगा हमारे पास j यूनिट वेक्टर j. सो अब हमें क्या करना है, इस ये प्रोडक्ट निकालना, तो हमें क्या लेना है, इन शॉर्ट हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है. तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए हम क्या करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं. तो आई विल राइट हियर आर वेक्टर इंटू डी आर इंटू दिस टर्म, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टी. दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आई जे, देन इट इज़ के, देन इसके टर्म्स ले लेंगे, ये हो गया टी क्यूब, नेक्स्ट इज़ 2t क्यूब माइनस 1/5t स्क्वायर, मगर के की टर्म है नहीं तो आई विल राइट हियर 0. सिमिलरली नेक्स्ट आ जाएगा 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर, देन इट इज़ 6t स्क्वायर प्लस 2/5t क्यूब, और अदर टर्म विल बी 0. सो ये हमारे पास टर्म आ गई. अब हम इसको सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देन आई वाला टर्म से होगा, ये इन दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे तो वो 0 हो जाएगा. तो आई विल राइट 0 माइनस 0 इंटू यूनिट वेक्टर आई, देन प्लस नेक्स्ट टर्म विल बी जे के साथ. सो ये टर्म छोड़ेंगे टी को, इसके साथ ये अगेन 0 माइनस 0 होगा इंटू जे यूनिट वेक्टर, देन लास्ट टर्म विल बी के में हो जाएगा दिस इंटू दिस टर्म. सो आई विल राइट हियर टी क्यूब को इससे मल्टीपल करेंगे तो t रेज पावर 6t रेज पावर 5 डिवाइडेड बाई 2/5 हो जाएगा, देन माइनस 6t रेजिंग पावर 5 प्लस 3/5 होगा इंटू यूनिट वेक्टर के. सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2/5 है और ये 65 है, देन इट विल बिकम, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ से हमारे पास ये सारी टर्म जो हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई. हमारे पास बनेगा 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू यूनिट वेक्टर के, सो विच इज़ इक्वल टू यूनिट वेक्टर के. सो हैंस आर वेक्टर इंटू डी आर डेरिवेटिव ऑफ दिस वेक्टर, दिस इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर के, हैंस सॉल्व्ड.
सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ अदर वेक्टर इज इक्वल टू दिस टर्म, देन वी हैव टू शो दैट डेरिवेटिव ऑफ दिस होल टर्म इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. सो ये बहुत सिंपल है. सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास क्या क्या टर्म्स हैं. we have d a by this term is equal to r vector cross a vector, and derivative of b vector with respect to t, this is equal to r vector cross b vector. सो अब हम सबसे एल एच एस ले लेंगे और उसको आर एच एस के इक्वल शो कर देंगे. सो टेकिंग एल एच एस हमारे पास क्या है, डी बाई डी टी ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. और अब हमें इसको फॉर्मूला लगाना है और हमें पता है इसका फॉर्मूला किसके इक्वल हो. सो दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ अदर वेक्टर. सो यहाँ पे अब देखिए जो डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर बाई डी टी वो किसके इक्वल था, आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. तो ये अप्लाई कर लेंगे इसमें. तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर देन क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. सो यहाँ से मैं इस बी वेक्टर को फ्रंट पे ले लूँगी तो मीन्स इसका साइन चेंज हो जाएगा. सो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ये आएगा ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ओके, अब हम इन पे भी फॉर्मूला अप्लाई लगाएंगे. ये फॉर्मूला है, हमने ऑलरेडी रिजल्ट्स में पढ़े हैं तो वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे. सो ये आपके पास बन जाएगा बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर into r vector minus b vector into r vector into a vector, then plus अदर टर्म में आ जाएगा हमारे पास a vector dot b vector into r vector then minus a vector dot r vector into b vector. सो ये हमारे पास दोनों टर्म्स आई. अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. ये आ जाएगा माइनस टाइम्स b vector dot a vector into r vector plus minus plus, then it becomes b vector dot r vector into a vector, then it will be plus a vector dot b vector dot into r vector, then minus a vector dot r vector into b vector. सो यहाँ से हमारे पास कुछ टर्म्स कट जाएगी और सिर्फ कुछ ही टर्म्स रह जाएंगी. सो हमारे पास यहाँ से क्योंकि ए वेक्टर कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है, because we know that a vector dot b vector this is equal to b vector dot a vector. so यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, b vector dot r vector into a vector minus a vector dot r vector into b vector. सो इन शॉर्ट ये टर्म और ये टर्म क्या हमारी कैंसिल आउट होती है, लास्ट के दो टर्म्स रह जाएंगे. सो यहाँ से हम इसको अगेन लिख सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू आर वेक्टर, क्योंकि कम्यूटेटिविटी है तो इसको चेंज कर सकते हैं, आर वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस आर वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर. सो यहाँ से ये हमारे पास कौन सा अब बन गया, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला बन जाएगा. वो किसके इक्वल हो गया, आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और वो किसके इक्वल था, वो आर एच एस के इक्वल था. सो इस तरीके से आपने वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो आप इस पर और क्वेश्चन सॉल्व करें, मोर जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. सो थैंक यू.